Perfect. So today we're gonna discuss about paid marketing on Google, on Facebook, on any other platform. So the basic idea is to promote your website on any of the platform. So what are the ideas, how to do that, everything we will discuss today, right? So, okay. So paid marketing, online advertisement, basically it can be done via search engine advertisement. It can be done via social media advertisement. Display advertisement is basically we talk about banners, right? Banner advertisements and advertisements on mobile, on app, or and also on the YouTube, right? So let us see how to do that, right? So why PPC? PPC means pay per click. Whenever user will click on your advertisement, then only you have to pay, right? So that is the main idea of PPC. So why PPC? Because it gives a direct and quick traffic to your website. You don't have to wait, right? So it is the most uh, liked source of traffic by all the digital marketers. There are many brands who are only depending on this as well only, like you must have heard about drop shipping as well. Drop shipping is a kind of e-commerce only. So all those people who are working in drop shipping, they are heavily uh, you know depend on pay per click advertisement. Okay, so there are three ways of charging, means three ways people or these websites charge the advertisers. So वो क्या है? There are three ways. Like first is CPC method, second is CPA method, first is CPA method, or third is CPA method. So now there are two parties. One is Google, one is advertiser. Now advertiser needs more traffic quickly, and Google has lot of traffic, right? So Google charge करेगा उसको तीन तरीके से. First is CPC. That means whenever any user will click on it, advertiser has to pay. It is dynamic method of charging, like 5 rupees, 10 rupees, 2 rupees, 50 rupees, even 800 rupees, and either more than that as well. तो CPC में यही चीज है कि charges dynamically change होते हैं, and that depends upon the competitor competitors कि competitor कितने हैं उस समय, then only it is decided. Second is CPM, cost per 1000 impression. आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में लिखा हुआ. So what is CPM? 1000 impression. What is impression, by the way? Showing your result, your data on the screen. That means impression. Okay. Google ने आपके डेटा को, आपके एडवर्टीजमेंट को एक बार शो कर दिया. That means एक बार impression मिल गया, right? Mainly CPM method is used when you want branding. आपको अगर ब्रांडिंग करनी है, ब्रांडिंग क्या होती है? बार बार दिखाना, right? Showing your data, your advertisement, your website multiple times so that people or user memorize your brand, your name. That is branding, right? So 1000 times दिखाओ किसी को, वो उसको याद हो जाएगा. बट इन दोनों मेथड में CPC एंड CPM, in both of these methods, there is no compulsion, there is no commitment from Google to give you any sales. Okay, however, we have to start our campaigns with these two only. As soon as you set up your campaign, you have to either pick CPC, or if it is a display or video advertisement, you have to choose CPM, right? But there is no commitment from Google
to bring any sales. And if you want sales, then you have to switch to CPA, cost per action, right? Okay, let us discuss more, then we will come back again. Okay, so this is advertisement. It is a form of advertisement. कल के सेशन में हमने यही बताया था. अब जैसे एकता एम्पोरियम हमारा जो एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, राइट? एकता एम्पोरियम क्या बेचता है? बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, राइट? So wherever you search for any such keyword, let me go back to, wait a second. We'll see a live result demo, right? Then only. Okay. Clothes for boys. Okay, I'm sharing. Here it is. Okay, so we search for clothes for boys. Fab India is on top. NikaFashion.com is on top. Bambini Fashion, Ajio.com. They are paying to Google heavily. They are funding Google heavily to show their advertisement on top, right? But सिर्फ पैसा देने से इनका ऐड ऊपर नहीं आ रहा है. They have to maintain the quality as well, right? Google नहीं चाहेगा कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में ऐसी कोई सी भी वेबसाइट आए जिसकी यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ना है, राइट? बहुत अच्छा होना चाहिए. Once the user experience is good, then it comes on the money, right? So Fab India must be paying, for example, let's take an example. Fab India is paying only 25 rupees per click. If I click over here, Fab India will pay 25 rupees to Google, right? But Nika Fashion, Bambino Fashion and Ajio हो सकता है 30 rupees पे कर रहे हों, right? So this is one of the idea of getting your brand on top of Google by maintaining quality, right? It can be, right? So first, अब जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, now you have to maintain the quality on the landing page. अगर आपको फर्स्ट सेशन याद हो, then we discussed about landing pages, then हमने वही बात की थी. अब जैसे boys clothing, right? So this is the title of this, and what we searched, clothes for boys, दोनों same to same हैं, right? So this way ये दोनों ही पेजेस आपका एडवर्टाइजमेंट. नाउ एडवर्टाइजमेंट में भी देखिए बॉयज क्लोथ्स, ये कीवर्ड मैच कर रहा है. तो दीज आर द थ्री लोकेशंस, सर्चिंग कीवर्ड, एडवर्टाइजमेंट एंड लैंडिंग पेज. These three elements should contain, must contain the keyword on which searches are happening, right? It increases the relevancy. Okay. Now this is the main idea. Maintain the quality throughout your keyword, your ad, and the landing page. Okay, let's go back to presentation. Okay, so this is the idea. तो यहाँ पर क्या होगा, आपको हर सर्च पे, हर एक बार क्लिक्स पे बिड लगानी पड़ती है. It is an auction for the 4 position, right? And out of these 4 positions, you have to earn the first top location, right? तो अब कैसे होगा? By maintaining quality, relevance. Okay, so now we will discuss some more ideas. पहली चीज हमने समझ ली, क्वालिटी मेंटेन करना है, right? Okay, so first is we have to maintain the quality, but again quality कैसे maintain होगा? By finding the keywords. Keywords कैसे पता करोगे? By doing the keyword research, right? So हमने कल discuss किया था keyword research करने का तरीका. I showed you Google Ads keyword planner, right? Once you are having the list of keywords, then you have to run the
एडवर्टाइजमेंट। तो लेट मी शो यू सम कैंपेन जहां पर कहां पर कैसे होता है। बट अगेन फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे एग्जांपल है, यू हैव टू यूज कीवर्ड्स। ओके, आपको ये कीवर्ड्स अपनी लिस्ट में रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू शो एडवर्टाइजमेंट ऑन कार एक्सेसरीज सप्लायर्स इन दैट, राइट? सो इसको लिखने के चार तरीके हैं। ओके, लेट मी शो यू डायरेक्टली व्हाई टू discuss over here when we are having campaigns to show you guys. Okay, so my organization name is Fulcrum Services, and I consult clients as well. So this is one of my client, one of my account for running Google Ads. Okay, so ये अभी तक को लगभग एक महीने में इतना इस अकाउंट में खर्च हुआ है। And let's go to one of the account. ओके, सो यहाँ पर देख रहे हैं कैंपेन हमारा सेटअप है। ऑल्दो अभी हमने पॉज कर रखा है, कुछ कुछ यहाँ पर आप देखिए क्लिक्स आ रखे हैं, पैसे खर्च हो चुके हैं, राइट? सो मैं ये वाला लेता हूँ, छोटा अकाउंट। इन लास्ट 30 डेज हमने स्पेंड किए हैं कुछ 250 रुपये, राइट? 500 रुपये। यहाँ पर हमने ये कैंपेन सेटअप कर रखे हैं, आर ओ प्यूरिफायर, कैंट, एक्वा फ्रेश। सो पीपल हु want to have services related to RO purifier. Now see, first, अच्छा बैक मैं फिर से वापस लेके चलता हूँ। There are 3 steps. First हमें कैंपेन सेटअप करना होता है। Now in campaign we have to create ad groups, right? Now यहाँ से आपको ध्यान देना जरूरी है। Ad group contains similar type of keywords, right? I cannot put Kent related keywords in inside Aquafresh. I cannot put Aquafresh related keywords in RO purifier, right? I'm going into RO purifier. RO purifier is a generalized campaign, generalized group, जहां पर आप देख रहे हो सिर्फ RO से related keywords डले हुए हैं, fine. और when I create Kent related campaign और ad group, आप देख रहे हो सारे keywords में Kent है, fine. So इससे क्या समझ में आ रहा है? कैंपेन आपने क्रिएट किया, कैंपेन में कुछ हमने सेटअप किया कि कितने पैसे लगाने हैं, कितना हमें कौन से लोकेशन में लगाने हैं, वो सारी चीजें। जबकि एड ग्रुप्स में हमने कीवर्ड के हिसाब से ग्रुपिंग कर दी। नाउ लेट अस सी, कैंट से रिलेटेड में जाते हैं। वंस कैंट के अंदर गए, सारे कीवर्ड कैंट के थे, एडवर्टीजमेंट कौन सा दिखाएंगे? सो गो टू द एड्स एंड एक्सटेंशंस। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कैंट से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है? अभी क्योंकि बंद है हो रखा है कैंपेन, तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल दिख रहा है। बट ये लास्ट कौन सी तारीख को चलाया था? 24 जनवरी के समय चलाया था, और उस दिन का डेटा है, राइट? सो थ्री लैडर, 3 steps. First is campaign, second is ad group, and third is advertisement. Fine. अब इन कीवर्ड्स पे हम देखो, जब हम कीवर्ड्स डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द कीवर्ड्स। नाउ ये मैंने कीवर्ड डाला हुआ है कैंट आरओ सर्विस सेंटर। ये मैंने कीवर्ड डाला हुआ है गूगल को बताने के लिए, राइट? आई टोल्ड गूगल use this keyword for your reference whenever any person will search this keyword, then show my advertisement, right? But because this is a broad keyword means
Google will consider synonyms as well. Google will consider related keywords as well. So Google has shown my advertisement on these many keywords. Now see, Google के लिए synonymous क्या है? एक्वागार्ड भी एक synonym है कैंट का, इसमें भी synonym है कैंट, राइट? गूगल को यही लगने लग गया है, तो गूगल ने, हमने तो कैंट डाला हुआ था, बट गूगल ने कहा शो किया? एक्वागार्ड कीवर्ड्स। और एग्जांपल देखते हैं। आरओ प्यूरिफायर। ना यार, कितने हैं? 4 कीवर्ड्स हैं। मैं चारों कीवर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, गो टू द सर्च टर्म, सी these are the actual keywords on which my advertisement was shown. RO installation, RO service center, राइट? ये तो हमारी कीवर्ड लिस्ट में नहीं था, बट स्टिल गूगल हैज शोड। व्हाई? बिकॉज हमारा कीवर्ड ब्रॉड मैच था, राइट? अगर मैं चाहूं कि मेरा एडवर्टाइजमेंट इस पे ही दिखना चाहिए या इस पे दिखना चाहिए, क्यों दिखना चाहिए? बिकॉज सी, कितने सारे की सर्चेस हुए हैं। इंप्रेशन मींस दीज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला कीवर्ड पे ऐड दिखाया गया है। सो व्हाट आई विल डू, I will pick this keyword as my one of the exact keyword. मैंने सेव कर दिया। Now see, I added this keyword in my list. देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ब्रैकेट के साथ एग्जैक्ट मैच। नाउ अब जब भी ये कीवर्ड सर्च किया जाएगा, एग्जैक्टली यही कीवर्ड आरओ इंस्टॉलेशन, तब तक मेरा ये एड नहीं दिखाएगा। अदरवाइज यहाँ क्या था, वो बहुत सारे कीवर्ड से मैच करके दिखा रहा था, यहाँ पर मैच नहीं करेगा, सीधे दिखा देगा। बट जरूरत यही है कि आरओ इंस्टॉलेशन सर्च किया जाना चाहिए, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सम सॉर्ट ऑफ टारगेटिंग्स। एक और है, एक और है, मैं दिखाता हूँ। चलो मैं यहाँ पर आ गया, ये था ब्रैकेट के साथ, देखा आपने, राइट? मैं आपको एक और दिखाता हूँ। हाँ, ये भी एडेड है। Okay, for example, this keyword, I want this keyword to be added, but in a different format. क्या था for format? With apostrophes. Apostrophes में लिख के मैंने सेव कर दिया, तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, phrase match. Now, please remember, there are 3 ways of giving commands to Google. One is broad match, जिसमें यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है. One is exact match with square brackets, and one is with apostrophes, which is called phrase match, right? Exact match में जब तक यही सर्च ना हो, गूगल आपका एड शो नहीं करेगा। ब्रॉड मैच में तो आपने लिख दिया, गूगल अपने हिसाब से उठा उठा के दिखाता रहेगा। विथ दिस गूगल कहता है कि ये जो कीवर्ड्स हैं इसके अंदर, इस अपोस्ट्रोफीज के अंदर, लाइक कैंट, सर्विस सेंटर, आरओ, जबलपुर, ये कीवर्ड्स होने चाहिए व्हेन एनी यूजर इज सर्चिंग। फाइन। हाँ, इनके साथ कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody is searching what is the price for Kent RO service center in Jabalpur, there is a big, very lengthy search keyword, but इस keyword में ये सारे words आ रहे हैं, then Google will show your advertisement, right? तो Google को बताने के लिए 3 तरीके से आप बता सकते हो, one is broad match, one is phrase match, one is exact match. फाइन, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
और हाँ, यहाँ एड सेक्शन में जाके आपको एड लिखना है, यू हैव टू राइट एड, फाइन। और वो एडवर्टीजमेंट आपके कीवर्ड से मैच होना चाहिए, देन ओनली इट विल शो योर एडवर्टीजमेंट, फाइन, ओके। लेट्स मूव फर्दर। सो हमने यही किया। अच्छा, वंस यू सेट टारगेटिंग कीवर्ड्स, बट आपको ये भी ध्यान देना है कि किन कीवर्ड्स पे आपको ऐड नहीं दिखाना है। यू कैन नॉट शो एडवर्टीजमेंट्स ऑन अनवांटेड कीवर्ड्स। अनवांटेड कीवर्ड्स क्या थे इस कैंपेन में? अनवांटेड कीवर्ड्स क्या थे? लेट मी शो यू अगेन। कीवर्ड्स पे गए, यहाँ देखिए कौन कौन से कीवर्ड्स है जिसमें हमें नहीं दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू स्टार, वॉट स्टार is the keyword on which we do not want to share our advertisement. Carry soft limited, we do not want to show our advertisement on this keyword, but somehow Google is showing our advertisement on this keyword. So how to stop that? Put it on the negative keyword list, right? But मैंने exact match के साथ यहाँ डाल दिया. Now if anybody will search with this keyword again, our advertisement will not be served, right? So keywords are of three types, in fact four types. One is broad match, one is phrase match, one is exact match, and another is negative keyword, fine। इस तरीके से you can manage your accounts, fine। एक बार फिर से देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंस। फॉर्मल, ये ब्रॉड मैच में अगर आपने डाला, सो गूगल विल कंसिडर सिनोनिम्स एज वेल, और वो हर तरह के कीवर्ड पे आपका ऐड दिखाएगा, बट वो सिनोनिमस होने चाहिए, फाइन, ओके। ये प्लस वाले को आप भूल जाइए, ये पहले चलता था, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग इट ओवर हियर। फॉर्मल शूज फ्रेज मैच अपोस्ट्रोफीज के साथ, दैट मींस इन द कीवर्ड फ्रेज फॉर्मल एंड शूज वर्ड शुड बी देयर। नाउ सी, ब्लैक फॉर्मल शूज मैच कर रहा है बट ब्लैक के साथ है, राइट? फॉर्मल शूज फॉर मेन, स्टिल इट इज हैविंग सम अदर वर्ड्स, बट आपका एड जरूर दिखाएगा, बट व्हेन इट इज विथ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, वो कोई वर्ड एक्स्ट्रा नहीं लेगा। if user will search with the exact word, then only it will show, okay। So this is again, this is keyword research, कल मैंने इसी का आपको दिखाया था। So there are like say if somebody will search like living room furniture, तो ये यहाँ पर ये दिखा रहा है कितने नंबर ऑफ सर्चेस हो रखे हैं, और ये कहाँ के लिए सर्च किया? होल इंडिया, राइट? आप किसी भी सिटी को भी पकड़ के आप सर्च कर सकते हो, एंड नंबर ऑफ मंथली सर्च विल बी शोन ओवर हियर, देन अकॉर्डिंगली यू टेक द फाइनल डिसीजन। एडवर्टीजमेंट कैसे लिखेंगे? एडवर्टीजमेंट लिखने का सबसे अच्छा तरीका है आइडा कंसेप्ट। दिस इज अ फ्रेमवर्क, राइट? इफ यू प्रैक्टिस यूजिंग दिस फ्रेमवर्क, you can write awesome advertisement, right? अब क्या क्या चीजें होनी चाहिए? AIDA, A फॉर अवेयरनेस, लाइक कोई भी रिलेवेंट कीवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यू आर सेलिंग ऑफिस फर्नीचर, उसके लिए हमने ऐड लिखा है, राइट? ऑफिस फर्नीचर, रिसेप्शन फर्नीचर डिजाइन, ये ऑफिस फर्नीचर इज द मेन कीवर्ड, राइट? तो आपको ऐड किस पे लिखना चाहिए? सबसे ऊपर हेडलाइन क्या होनी चाहिए? अफोर्डेबल ऑफिस फर्नीचर, राइट? जैसे हमने वहां पर सर्च किया था क्लोथ्स फॉर बॉयज, तो कीवर्ड, ऐड और लैंडिंग पेज तीनों जगह वही था, राइट? सेकंड चीज क्या है? इंटरेस्ट। आपके एड कॉपी पे क्या होना चाहिए? यूएसपी,
like unique selling proposition. Your website should have, your ad should have unique information about your services or the product. फाइन. यहां पर ऐसा क्या है जिससे इंटरेस्ट जाग रहा है? व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? सर ये तो चीज डिपेंड करती होगी ना कि जो यूजर है उसके लिए क्या प्रायोरिटी है। जैसे किसी के लिए अफोर्डेबल हो सकता है, किसी के लिए ट्रेंडिंग या यूनिक टाइप का कुछ नए लेटेस्ट चाह रहा हो, तो सर इसमें प्रायोरिटाइज कर सकते हैं क्या? हाँ जी, देखिए उसी के लिए हमें एक से ज्यादा ऐड लिखना पड़ता है, राइट? और एडवर्टीजमेंट आपको जब भी लिखना है तो दो तीन चीजें हैं, लाइक हेडलाइन आपको 6-7 देनी पड़ती है, ये डिस्क्रिप्शन भी आपको कम से कम 3 से 4 देने होते हैं, राइट? सो आपके नजरों में जैसे आपने बताया किसी के लिए लेटेस्ट डिजाइन है, किसी के लिए प्राइस है, राइट? तो आप सारे जो यूनिक थिंग्स हैं वो सब एक जगह नोट डाउन करके रखो और अपने एडवर्टीजमेंट में इंक्लूड करो. फाइन. तो गूगल उन सारे एडवर्टीजमेंट को एक एक करके दिखाता है, ठीक है? तो यूजर जिस तरह का है, उसकी जैसी इंटरेस्ट है, गूगल विल सर्व सिमिलर एड्स फॉर दैट पर्सन. वी डोंट हैव टू यू नो वरी अबाउट दैट. बट यस, आपको अपनी तरफ से सही अच्छा एड लिखना है. सो इंटरेस्ट इज समथिंग रिलेटेड टू यूनिक फीचर ऑफ योर सर्विस और प्रोडक्ट, राइट? और द एंटायर ऑफरिंग्स. तो यहाँ पर यूनिक फीचर क्या है? लेटेस्ट डिजाइन और कंप्लीट रेंज ऑफ ऑफिस फर्नीचर अंडर योर बजट. सी, I have mentioned both the things. Now there are two things. One is interest. You have to mention something which make your people in your audience interested. Desire, D for desire, like any discount offers. And third is call to action, right? यहाँ पर फिर से देखते हैं. सो यहाँ पर मेरे अंदर इंटरेस्ट तो जाग रहा है ये देख के लेटेस्ट डिजाइन अवेलेबल इन 2022, राइट? दूसरा, मेरे को डिजायर जगाना है, लाइक तो हियर आई मेंशन अंडर योर बजट. सो मोस्ट ऑफ द पीपल वेन एवर दे बाय एनी ऑफ फर्नीचर्स, दे लुक फॉर सम बजट ऑप्शंस. सो मैंने उसको भी मेंशन किया हुआ है, राइट? और कॉल टू एक्शन क्या होता है? विजिट नाउ या बाय नाउ, राइट? या कॉल नाउ. ऐसे वर्ड्स जो सामने वाले पर्सन को प्रोवोक करे टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन, राइट? सो दिस इज हाउ वी हैव टू ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट. अगेन फिर से याद रखें, आइडा कंसेप्ट, AIDA, right? Whether it is your landing page, whether it is your advertisement for Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, wherever. Fine. Now it is just showing what we have seen. First comes account, then campaign, then ad group, and then keywords and advertisement. So this diagram is just showing an example कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है तो एक से ज्यादा कैंपेन आप बनाओ, बट कैंपेन शुड बी इन अ सिमिलर फैशन. सो एक कैंपेन हमने बना दिया किससे रिलेटेड? टीवी कैंपेन से. एक कैंपेन बना दिया हमने फोन से रिलेटेड. अब टीवी भी एक ही तरह की तो होती नहीं है, टीवीज आर ऑल्सो इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. तो एक एड ग्रुप मैंने बना दिया फ्लैट स्क्रीन, और उसके अंदर उसी से मिलते जुलते कीवर्ड्स डाल दिए. प्लाज्मा स्क्रीन इज अ डिफरेंट एड ग्रुप, फाइन, और उसके अंदर उसी से मिलते जुलते कीवर्ड्स और ऐड डाल दिए. सो सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मेक श्योर्स कि आपका एड सही जगह दिखा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज, आप लोग बताना, इफ यूजर विल सर्च फ्लैट टीवी तो कौन से एड ग्रुप का एड दिखाएगा? यहाँ पर आपको 4 एड ग्रुप दिख रहे हैं, फ्लैट स्क्रीन, प्लाज्मा, स्मार्टफोन, CDMA. टीवी कैंपेन वाला दिखाएगा सर. कौन सा एड ग्रुप? एड ग्रुप टीवी कैंपेन तो सही है, बट टीवी कैंपेन में से कौन सा वाला एड ग्रुप? प्लाज्मा स्क्रीन वाला या फ्लैट स्क्रीन वाले दिखाएगा?
flat screen. क्यों? Why? Because flat keyword is over here, right? बिल्कुल. If user will search HD TV, then प्लाज्मा स्क्रीन में वो दिखाएगा फिर HD प्लाज्मा right, HD. है ना? सो कभी भी ये गलती नहीं करना है हमें कि सारे कीवर्ड एक ही एड ग्रुप में डाल दिए. This is very big blunder. We have to segregate ad groups according to similar keywords. Fine. This is what we have seen कि कैसे ये डैशबोर्ड आपको दिखाता है, कीवर्ड प्लानर का दिखा दिया है यहाँ पे, राइट? वो आई होप ये चीज समझ में आई होगी, राइट? सो आपको अब ये क्या करना है, वो जो मैंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया, और आपको अपना कीवर्ड गूगल का अकाउंट खोल के उसके अंदर कैंपेन सेटअप करना है, राइट? ओके, मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, because I did not show you how to set up an account. See, how to set up a campaign. So यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं एक दूसरे अकाउंट में चलता हूँ. Okay, so this demonstration will help you set up campaign from scratch. Okay, but first let us discuss. What to discuss? Our priorities. Fine. Ekta Emporium was our campaign. Now Ekta Emporium is sales clothes for kids, clothes for male, clothes for girls, right? So let us take clothes for kid. I will start campaign from here, new campaign. Now ये campaign मुझे चलाना तो है, but where? Location has to be decided, right? So मैंने इसको पकड़ा Delhi, fine, and exactly where? People who live in Delhi, right? ऐसा नहीं होना चाहिए कि people who are traveling via Delhi, people who are traveling to Delhi. No, people who live in Delhi, right? और मेरा बजट क्या रहेगा? 1000 रुपीज पर डे, फाइन. और पर क्लिक का मैं कितना पे करना चाहूंगा? 20 रुपीज. ठीक है, इसको हम बोलते हैं बिड. सो कहां पर गया था मैं? इसको प्लस साइन क्लिक किया, न्यू कैंपेन, वेबसाइट ट्रैफिक, कंटिन्यू, सर्च. Now if you would like to set up a campaign for on YouTube, pick at this. अगर आपको डिस्प्ले इमेज एडवर्टाइजमेंट चलाना है तो पिक दिस. और अगर आपको इस तरह के ऐड चलाने का गया, ये इस तरह के, ठीक है ना, देन पिक शॉपिंग कैंपेन. मैं यहाँ पर वेबसाइट डाल देता हूँ. फाइन, बजट क्या रखा है हम? 1000. oops, 10,000 हो गया. कन्वर्जन की जगह व्हाट आई वांटेड टू हैव, क्लिक्स. ठीक है, और मैं हर क्लिक का कितना पे करना चाह रहा हूँ? मैक्सिमम 20 रुपीज. मोर सेटिंग्स नहीं. ठीक है, मैं बैनर ऐड नहीं दिखाना चाह रहा. नाउ दिल्ली वाज दी राइट. एंटर लोकेशन एट दिल्ली, टारगेट. नाउ दिल्ली में कहाँ पे? सिर्फ अंदर जो रह रहे हैं, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशंस, द सेकंड ऑप्शन.
राइट. सो अगर फर्स्ट वाला चूज कर लिया, देन व्हाट विल हैपन, दिल्ली इज द कैपिटल, डेली वहां पर फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, राइट. सो जो फॉरेनर आके वहां से वापस अगर लंदन भी जा रहा है तो उसको भी दिखाएगा. सो डू वी रियली वुड लाइक टू शो आवर एडवर्टाइजमेंट टू द फॉरेनर्स? नो. राइट. नेक्स्ट. ओके. यहाँ पर कीवर्ड इसने ऑटोमेटिकली ले लिए क्योंकि आई डोंट हैव एनी ई कॉमर्स रिलेटेड टू क्लोथिंग. तो यहाँ पर हम कीवर्ड डाल देंगे क्लोथ्स फॉर किड्स, राइट. यहाँ पर आप कितने भी कीवर्ड्स डाल सकते हो और यहाँ पर वेबसाइट के साथ आपको ये डिटेल ऐड, ये देखिए पूरा एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए ऑप्शन आ गया, राइट. जितने ज्यादा अच्छे हेडलाइन लिखोगे उतना ही स्कोर अच्छा यहाँ आता जाएगा, एड स्ट्रेंथ अच्छी होती जाएगी, एंड देन यू कैन रन फाइनल एडवर्टाइजमेंट, राइट. सो ये तो हो गया कैंपेन सेटअप करने का तरीका. बट स्टिल इफ अंटिल यू पे टू गूगल ये एडवर्टाइजमेंट तो नहीं रन होगा. तो पे करने के लिए कहाँ जाना है? टूल्स एंड सेटिंग्स, समरी. टूल्स एंड सेटिंग्स, समरी. और यहाँ से फिर आप पेमेंट कर सकते हो. ठीक है. मैनुअल पेमेंट रहेगा, आप पेटीएम से भी कर सकते हो, डायरेक्ट नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, राइट. सो आई होप ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, राइट. हम आगे बढ़ते हैं. कोई अगर आपको सवाल पूछना है तो यू कैन आस्क. सर थोड़ा ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब थोड़ा सा क्वेरीज तब राइट शायद राइट. हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया है, तो आप वीडियो को देखते देखते भी कर पाए, है ना. सेकंड आता है एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया, राइट. ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, बट सोशल मीडिया में एक चीज है कि सोशल मीडिया में आपका एड उन लोगों को दिखता है जिसको इंटरेस्ट होता है, राइट. पीपल आर नॉट सर्चिंग विद एनी कीवर्ड्स ओवर हियर, राइट, है ना. यूट्यूब हो गया आपका, ये सोशल मीडिया हो गया, यहाँ पर कोई कीवर्ड वाइज टारगेटिंग नहीं होती. यहाँ पर क्या होती है, जो आपने पिछले 2 4 10 दिन से या 6 महीने से जो भी आपने सर्च किया हुआ है, किस तरह का डेटा आप देखना चाह रहे हो, किस तरह का कंटेंट आप देखना चाह रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको ऐड दिखाता है, राइट. बट अगेन यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया, दिल्ली को टारगेट किया था हमने 1000 रुपए डाल के, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं. So you can target demographically. What is demographics? Demographics is basically लोगों का एज, जेंडर, राइट, इनके हिसाब से जो आप टारगेटिंग करते हो वो डेमोग्राफिक्स कहलाता है. जियोग्राफी, which location you are targeting, and their interest. So what they are interested to buy. किसी को टेक और गैजेट्स में पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, ऐसे करके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है ना. एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपांड योर फॉलोअर्स बाय रनिंग एडवर्टाइजमेंट्स. बट एक बात का ध्यान रखना है आपको, एडवर्टाइजमेंट आपको मोबाइल के हिसाब से बनाने हैं और अच्छे बनाने हैं, बिल्कुल अट्रैक्टिव से, राइट. और डिफरेंट फॉर्मेट्स भी हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के. अगर आपके ध्यान हो तो एक कैरोसेल टाइप का ऐड आता है जिसमें आप यू कैन स्वाइप, राइट. यू कैन रन एडवर्टाइजमेंट ऑन स्टोरीज, यू कैन रन एडवर्टाइजमेंट्स ऑन रील्स, ऐसे करके ऑप्शंस आते हैं. सो आपको एक्सपेरिमेंट सबको करना पड़ेगा. नाउ दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अगर आपने फेसबुक में ऐड रन किया हो तो ऐसा यूजर इंटरफेस दिखता है. यहाँ पे भी जैसे गूगल में अब हमने देखा बहुत सारे ऑप्शंस थे. वी कैन रन एडवर्टीजमेंट फॉर ट्रैफिक, वी कैन रन एडवर्टीजमेंट फॉर लीड्स, एंड देर आर 5 to 6 अदर ऑब्जेक्टिव्स, राइट.
Similarly, we have multiple objectives in Facebook also, like website visit, page engagement, app installation, है ना, events registrations, and many more. Few examples of advertisements on social media. Fine. Twitter में tweet post होती है. Fine. LinkedIn के advertisements. यहाँ पर you can run advertisement on वो banner advertisements हैं. ये ऊपर जो देख रहे हैं, this is advertisement. Unlock the full list. And sponsored in-mails. If you have seen LinkedIn, so you must have seen in-mails का option आता है. In-mails is a sponsored messages which you can send to anybody without having friends. आप सामने वाले की लिस्ट में नहीं हो, फ्रेंड लिस्ट में, but still you can send them some sponsored emails. Display advertisements. Display advertisements कैसे दिखते हैं? This is the example of display advertisement, right? आप देखिए मैं कहाँ किया? I went to how to choose a dress for New Year's Eve. मैं कपड़े देखने के लिए मैंने एक आर्टिकल चूज किया, बट वहां जाके मुझे ये एड्स दिख रहे हैं. क्यों दिख रहे हैं भाई ऐसे एड्स? बिकॉज आई हैव हैड विजिटेड some sort of such websites, or either I had searched about Google My Business, about this brand. तो मुझे बैनर एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है. ठीक है, तो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स में यू कैन हैव टेक्स्ट एड्स, यू कैन हैव इमेज एड्स, जिसका एग्जांपल हमने अभी अभी जस्ट देखा. वी कैन हैव वीडियो एड्स ऑन यूट्यूब, ऑन other website as well, and we can have ads on mobile websites as well. ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छी चीज होती है, आपने सबने नोटिस किया हो, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, फॉर एग्जांपल मिंत्रा में, राइट, बट वहां जाके कुछ खरीदारी नहीं करी आप और बाहर आ गए, राइट, आपने 2-4 प्रोडक्ट्स देखे वहां पे और आप बाहर आ गए, आपने नहीं खरीदारी करी, बट वही एडवर्टाइजमेंट, वही प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स आपको हर जगह दिखने लग जाती. इज इट ट्रू? कभी नोटिस? यस सर, होता है ये चीज. राइट, दैट इज द कंसेप्ट. और ऑफर्स लगा के भी दिखा देते हैं कि ये चीज पे ऐसा ऑफर है जो आपने देखे थे प्रोडक्ट्स. राइट राइट राइट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रीटारगेटिंग. नाम से समझ में आ रहा है, जिनको हमने टारगेट किया है हम उन्हीं को दोबारा से टारगेट कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड रीटारगेटिंग. ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल मेथड, बट अगेन थोड़ा सा उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट हम यूज करते हैं और फिर उसके हिसाब से आपको एड्स दिखाते हैं. ओके, दिस इज कंसेप्ट. बेसिकली जैसा मैंने आपको दिखाया, कीवर्ड्स आपको अपने कैंपेन में रखना होता है. सो इफ यू वुड लाइक टू शो एडवर्टाइजमेंट ऑन चॉकलेट केक, सो सिर्फ अकेला चॉकलेट केक रखने से तो काम नहीं बनेगा. यू हैव टू क्रिएट एन एड ग्रुप विथ सिमिलर कीवर्ड्स. So you have taken chocolate brownie, chocolate fudge, choco walnut cake as well. ये 4 कीवर्ड आपने रखे. तो एडवर्टाइजमेंट में तो आपके सारे कीवर्ड्स आएंगे, टारगेटिंग होंगे. बट ऑन डिस्प्ले नेटवर्क, व्हाट इज डिस्प्ले नेटवर्क? शोइंग योर एडवर्टाइजमेंट्स ऑन अदर्स वेबसाइट. तो वहां पर टारगेटिंग किस तरह से होती है कि कोई ऐसा पेज है जहां पर चॉकलेट वर्ड लिखा हुआ है, there only our advertisement will be shown. ठीक है, ये हो गया आपका कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग. कीवर्ड था ऑलरेडी वहां पे और गूगल ने वहीं पर, ऑब्वियसली द आइडिया इज, कोई अगर इस पेज पे आ रहा है चॉकलेट रेसिपी देखने, तो वो पर्सन ऑलरेडी इंटरेस्टेड है चॉकलेट रेसिपी में, तो उसको वही ऐड दिखाएंगे, राइट. उसको मोटर बाइक का ऐड थोड़ी दिखाएंगे, राइट. तो अगर हाँ वो पर्सन मोटर बाइक में भी इंटरेस्टेड है, तो गूगल उसको मोटर बाइक के भी ऐड दिखा सकता है. These are the different targeting options: awareness, interest, intent, like locations. हम डिवाइस के हिसाब से भी टारगेटिंग कर सकते हैं. फाइन.
हम लैंग्वेज के हिसाब से भी टारगेटिंग कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स मतलब हम किस वेबसाइट पे कहाँ दिखाना चाहते हैं, हम वहां पे भी दिखा सेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट हम खुद से चूज भी कर सकते हैं किस दिन किस समय दिखाना है। ये देखिए एग्जांपल्स, राइट। तो ये नेटिव एड्स के एग्जांपल्स हैं। आपने टाइम्स ऑफ इंडिया विजिट किया होगा, यहाँ पर देख के आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हम किसी एड पे क्लिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बट यहाँ पर एड्स भी हैं। एड बाय टूरिज्म, एड बाय लाइफ हैकर, राइट। सो दीज आर एडवर्टीजमेंट, बट नॉर्मली ये कैसे दिख रहे हैं, दीज आर पार्ट ऑफ कंटेंट ओनली, राइट। ऐसा हमें लग रहा, बट दीज आर नॉट कंटेंट, दीज आर एडवर्टीजमेंट्स। और ये है रोड ब्लॉक एडवर्टीजमेंट्स, मतलब कि आपको पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा। until unless you take some action you cannot move further, fine। so ये थे सारे एग्जांपल्स आपके पेड मार्केटिंग के ऑन गूगल, on Facebook, on Twitter, on other platforms, right। अब आपकी बारी है, you have to take next action कि आपको कैसे ad setup करना है, and try to do at your place। and अगर कोई सवाल निकलता है then do let me know, right। you can ask in next session, fine। ओके सर। ओके, ये वीडियो कल की तरह शेयर कर दी जाएगी। एंड मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिकल करें और कल की सेशन में मुझसे पूछें जरूर, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।